I'm going to discuss with you is very interesting article, highly interesting article. I can say a highly interesting article about induction. So we have studied about induction. So I'm not discussing the first section of the induction. So this is called mutual induction. So first is I'm starting with then how question can be asked from this area. So what is meant by mutual induction? Mutual induction को आपने define करना है और उसके define the terms mutual inductance and give its units and dimensions. So as the questions to inductance is concerned, I have discussed with you. Units are same as that of inductance and the dimension formula is also same as that of inductance. So I have discussed with you in the last videos. Units are 1 Henry. 1 Henry is equal to 1 Weber ampere minus 1, and the dimensions are ml2 t minus 2 a minus 2. So this is the dimension formula as I have already discussed with you. So a question could be asked like this. So now we are going to discuss about the mutual inductance of the two coaxial solenoids. So it will be very interesting and you will enjoy a lot with this video. So first, starting with the definition. Definition of mutual induction is mutual induction is a phenomena of production of induced EMF. इसमें हमने क्या करना है कि induced EMF पैदा होगी in one coil. There are two coils. Induced EMF is produced in the one coil if there is the change of current in the nearby coil. यदि nearby coil में current change करते हैं आप या flux change करते हैं तो उससे दूसरी कॉइल में ईएमएफ पैदा होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो कॉइल्स हैं। अब इनको ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ जो कॉइल ये S1 है अंदर वाली और जो बाहर वाली जो कॉइल है वो S2 है और ये इसकी कॉमन एक्सिस है जिसके अराउंड इनका जो कॉमन सेंटर है देयर कॉमन एक्सिस है और इसकी जो कुछ ज्योमेट्री है उसको हम लिखते हैं फॉर द इनर सोलेनॉइड। जैसे S1 है, इनर सोलेनॉइड S1 उसका जो रेडियस है वो R1 है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 है और जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल S1 आर कैपिटल N1। और इसी तरीके से हम दूसरी कॉइल ले रहे हैं S2, उसके कुछ पैरामीटर्स कैसे हैं, R2 उसका रेडियस है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो है उसके N2 है और टोटल नंबर ऑफ टर्न जो है वो कैपिटल N2 है। अब म्यूचुअल इंडक्शन है क्योंकि इसमें ऐसा होगा, हम ये पढ़ेंगे कि एक कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड होगा, उससे फ्लक्स पैदा होगी दूसरी कॉइल में और देन वी हैव टू स्टडी द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। सो इस प्रोसेस को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जो कॉइल S2 है, जो बाहर वाली ये वाली कॉइल है, इसके बीच में हम करंट भेजते हैं I2। So initially when current I2 is set up in the coil, first one, पहला केस, when current I2 is set up in the coil S2 में यदि करंट आएगा तो करंट आने से क्या होगा, ये आपके पास एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड का केस है। तो यदि इस कॉइल में करंट आएगा तो करंट आने से क्या होगा, ये एक मैग्नेटिक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी। मीन्स इट विल क्रिएट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रिएट करेगी तो इसके अंदर एक यूनिफॉर्म फील्ड जो है वो मैग्नेट जो डेवलप हो जाएगा। अब जब मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी। अब इसमें होगा क्या कि इसके अंदर जो है वो एक छोटी कॉइल भी है ऐसे ऐसे करके। तो जो सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो धीरे धीरे कैसे कहाँ से गुजरेंगी, कॉइल S1 के बीच में से गुजरेंगी। these magnetic lines of forces will cross through the coil S1. So what will happen then? All these turns of the coil S1 will contribute to the magnetic flux. That is what we have studied earlier in the induction, in inductance. So all the turns of the coil S1 will contribute to the magnetic flux. Then I can write phi N1 phi 1 is equal to coefficient of mutual inductance of the first coil and current in the second coil
So current is here in the second coil. So I will mark this as equation number 1. और वैसे आप अब इसको सेपरेटली सॉल्व करने की कोशिश करिए आप कि n1 phi1 को यदि हमने सॉल्व करना तो इसको कैसे लिखेंगे? n1 क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. तो n1 जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? n1 is equal to n1 time L number of turns per unit length and total length of the solenoid. This part, this is the total length of the solenoid, right? So you can write in place of n1, you can write n1 time L and flux phi1. Phi1 क्या होगा? Magnetic field of the second coil and the cross sectional area of the first coil. So this is as both B and A are in the same direction, so angle between them is equal to 0, so it is just VA. So magnetic field of the is produced by the second coil. So जिसमें करंट बह रहा है उसको हम लिख सकते हैं सोलेनॉइड के केस में, और ये म्यू नॉट हो गया मीडियम, और n2 the number of turns per unit length of the second coil, current flowing in the second coil, and area जिसके बीच में से लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस करेंगी वो एरिया आ जाएगा पाई r1 स्क्वायर. आपको पार्ट वाइज अब समझ आ गया है क्योंकि एंगल जो है यहाँ कॉस थीटा, हेयर थीटा इज इक्वल टू 0, हेयर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. सो अब आप इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर कर सकते हैं बाय comparing equation 1 and equation 2. भी है, हम इक्वेशन 1 और 2 के यदि कंपेयर करें तो आप I2 के साथ जो है आई मीन या आप ऐसा कह दें कि जो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होगा. तो मैं यहाँ लिख दूँ, पेंसिल का जरा कलर बदल लेते हैं, बच्चे इससे प्रसन्न होते हैं. ये आ जाएगा M12 I2 इज इक्वल टू N1L टोटल नंबर ऑफ टर्न्स म्यू नॉट N2 I2 and this is pi R1 square. So I2 से I2 cancel हो जाएगा. So coefficient of mutual induction of first coil, then there is a current in the second coil. It will be mu 0 now, N1 N2 and then pi R1 square into L. ये आपके पास another equation हो जाएगी. You can write this equation as equation number 3. Now अब हम आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं, जरा बदल के देखते हैं. सो नेक्स्ट पार्ट में हम ये देखते हैं कि यदि हम पहली कॉइल में करंट भेजते हैं व्हाट विल हैपन. हाँ, एक बात यहाँ बड़ी ध्यान रखने वाली है कि यहाँ हम ये इसका एज इफेक्ट को निगलेक्ट कर देंगे और हमें कंसिडर करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो म्यू नॉट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेकेंड कॉइल है B2 दैट इज म्यू नॉट N2 I2, this magnetic field is considered to be uniform neglecting the edge effect. Okay, ये तभी संभव हो जाएगा if length is very much larger than radius of the coil. ये कंडीशन आपको याद रखनी है. अब हम आगे चलते हैं नए कलर के साथ. अब हम ऐसा करते हैं कि रिवर्स केस को कंसिडर करते हैं. रिवर्स केस में हम ये देखेंगे कि यदि मान लो अब हम ऐसा करते हैं कि इस कॉइल में करंट देते हैं, जो इनर कॉइल है इस कॉइल में हम यदि करंट भेजते हैं तो इसके बाहर जो है, इसका मैं फिर जो डायग्राम बना रहा हूँ, ये फॉर एग्जांपल एक कॉइल S1 है और इसके जो बाहर की कॉइल है S2, ये बाहर है ऐसे करके. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, अब आप करंट जो है वो इस कॉइल में भेज रहे हैं, S1 कॉइल में करंट होगा. तो क्या होगा, जब इस कॉइल में करंट भेजा जाएगा तो ये एक बार मैग्नेट की तरह काम करेगी. जब ये बार मैग्नेट की तरह काम करेगी तो जितनी भी इससे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. अभी जब मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा तो वो इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो इसी कोर के बीच में से गुजरेंगी. तो इसको मैं लिखूंगा कि जो सारी कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं दे विल कंट्रीब्यूट टू द मैग्नेटिक फ्लक्स. दिस इज वी हैव स्टडीड इन द इंडक्टेंस. सो यू कैन राइट इट ओवर हियर कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि करंट I1 is now passing through the solenoid S1 and the flux linkage in the coil S2, flux linkage
in the coil S2 is, वो हो जाएगा N2 टाइम phi 2 is equal to, now coefficient of mutual induction of second coil when there is a current in the first coil, and this part is I1. So we'll now try to calculate this part separately. मैं इसको इक्वेशन नंबर पहले 4 लिख लेता हूँ. Now we'll try to solve this part once again. This is N2 टाइम phi 2 क्या होगा? N2 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो N2 टाइम L, और जो फ्लक्स होगी वो B डॉट ds होगा, तो उसमें कंडीशन वही रहेगी, एंगल थीटा इज इक्वल टू 0. सो आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड नाउ इन द फर्स्ट कॉइल. मैग्नेटिक फील्ड इन द फर्स्ट कॉइल क्या होगा? म्यू नॉट टाइम नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द फर्स्ट कॉइल एंड द करंट इन द फर्स्ट कॉइल. वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट नाउ विल स्टार्ट. जो इसमें एरिया आएगा, तो एरिया क्या होगा कि जो ये कॉइल है इसमें एरिया जहाँ से वो लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजरेंगी, क्योंकि वो आउटसाइड द मैग्नेट तो हम कंसिडर नहीं करते, तो इस केस में क्या होगा? एरिया पाई आर वन स्क्वेयर ही आएगा, पाई आर वन स्क्वेयर ही आएगा, बिकॉज magnetic lines of forces will produce the magnetic field only inside the magnet. So now if its current is flowing inside the coil S1, then field lines are considered to flow inside the magnet. So that is reason भाई कि जो ये part of the coil S2 होगा, S2 के coil का जो cross sectional area बनेगा वो just pi r1 square ही बनेगा. Okay, so you have to understand this part clearly. Now comparing equation 4 and 5, comparing equation 4 and 5, we have, हमें देखेंगे कि आपके पास जो M21 है, ये ऊपर वाले की तरह भी आप कर सकते हैं, ये आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2, इसमें I1 से कैंसिल हो जाएगा. दिस पार्ट यू आर लेफ्ट विद द, ये वाला पार्ट है, ये दोनों में कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, एंड यू आर लेफ्ट विद M21. सो M21 इज इक्वल टू म्यू 0 N1 N2, एंड देन इट इज पाई R1 स्क्वायर टाइम L. So what you are observing of from here, from equation 6 and 3. So I will mark this as equation number 6. From equation 3 and 6. From equation 3 and equation 6. We can write M12 is equal to M21 is both are same, so we can write say just M. So this is the way to find that. This shows that M12 mutual inductance of first coil when there is a current in the second coil, and mutual inductance of the second coil when there is a current in the second coil, both of these are same. So ये हमने इस स्टेज पर किया जब हमारे पास जो अंदर मीडियम है वो एयर था, और यदि मान लो कि आपके पास आप मीडियम को बदल देते हैं तो ये आपके पास ये M का फार्मूला कैसा हो जाना चाहिए, ज़रा देखिए. तो ये M का फार्मूला हो जाना चाहिए यहाँ Q म्यू, द मीडियम यू आर टॉकिंग अबाउट, N1 N2, दिस इज पाई R1 स्क्वायर टाइम L, एंड दिस इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होती है वो होती है म्यू अपॉन म्यू 0. सो यू कैन रिप्लेस दिस म्यू विद relative permeability time mu 0. So then this coefficient of mutual inductance is mu r, उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, और mu 0 ये इतना टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा N1 N2 and pi R1 square time L. So this is all about the coefficient of mutual induction. And now we will carry this article in a very fine way, that how nicely it is explained on the basis of the mathematics what is mutual induction is. So I would like to discuss the experiment number 6.3 of Faraday experiment 6.3. रिकॉल करिए जरा उसको, आपने इसको पढ़ा था कि यदि आपके पास कॉइल ऐसे होती है, इफ़ यू हैव जस्ट वन कॉइल C1, उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था, यदि आपके पास कॉइल है C1 और उसमें गैल्वेनोमीटर है,
and this coil is C1, and then the nearby coil is this coil is nearby coil is C2. Okay, so now this is connected to the battery, and this is the tapping key. So what we have seen from this experiment कि यदि आप इसको आप प्रेस करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो इसमें करंट आता है. इसमें यदि करंट आता है तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आती है. ये हमने पढ़ा था और वो डिफ्लेक्शन का कारण भी हमने वही पढ़ा है कि इसमें फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज से ईएमएफ फ्लक्स चेंज होता है, फिर फ्लक्स चेंज से ईएमएफ पैदा होता है और उसी से ही करंट आता है. और यदि आप इसको दोबारा फिर से स्विच ऑफ कर देते हैं तो फिर दोबारा से करंट डिक्रीज होता है, फिर फ्लक्स चेंज होता है, ईएमएफ पैदा होता है, डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है. ये हमने सब पढ़ रखा है. अब हम इसको जरा मैथमेटिक्स की शेप देते हैं कि हमारे पास जो कॉइल C1 है और कॉइल C2 है. आप ये देख रहे हैं कि यदि इसके बीच में करंट फ्लो करता है और जिसको मैं कह देता हूँ I2 करंट है जिसके बीच में फ्लो करता है, तो ये जो सारी टर्न्स है, इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स है N1 है, तो इसमें फ्लक्स चेंज होता है phi1. सो हमने ये पढ़ा है कि जो N1 phi1 होगा ये प्रोपोर्शनल होगा I2 के. तो ये हो जाएगा N1 phi1 इज इक्वल टू M12 एंड देन I2, और जिसको बाद में हम M ही लिख सकते हैं. अब हम इसका जरा डेरिवेटिव लें. यदि करंट आपका समय के साथ बदल रहा है तो वी कैन टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस. मैं इसको ऐसे लिखूं, d/dt ऑफ N1 phi1, M12 and M21 is same, so I can write it just M time d/dt of M time I2. so माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड. सिंपल मैथमेटिक्स है. आप N1 को बाहर ले लीजिए, ये तो कांस्टेंट है, माइनस N1 टाइम d/1/dt इज इक्वल टू, आप M को बाहर ले सकते हैं, M टाइम, बिकॉज करंट इज रेगुलरली चेंजिंग, सो आई कैन राइट di2/dt. जरा गौर से देखिए, ये डेफिनेशन आपने पढ़ रखी है इन फैराडेज लॉ. ओके, यू कैन इंक्लूड दिस नेगेटिव साइन ऑल्सो. सो दिस इज व्हाट द EMF now in the first coil, जिसमें फ्लक्स चेंज होती है उसी में EMF पैदा होती है. So this is the EMF in the first coil is equal to coefficient of mutual induction time current changed in the second coil. This is the beauty of this mathematics. ये देखिए मैथमेटिक्स कितना सुंदर तरीके से आपको बता रहा है, और म्यूचुअल इंडक्शन को कितनी सुंदरता से मैथमेटिक्स आपको डिफाइन करके बताएगा कि यदि सेकेंड कॉइल में करंट चेंज होता है. ये देखिए, ये di2/dt का मतलब क्या है, I2 जो करंट है ये इस कॉइल में है, I2 जो करंट है वो इस कॉइल में है. तो ये d/dt क्या बता रहा है, समय के साथ यदि I2 का करंट यदि बदलता चला जा रहा है तो फर्स्ट कॉइल में EMF पैदा हो जाती है. एंड ये जो फर्स्ट कॉइल में कितनी EMF पैदा होती है ये डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस और कितनी तेजी से करंट जो है वो फर्स्ट कॉइल सेकेंड कॉइल में करंट जो है वो चेंज होता है. So this is very, I think for me this was very interesting mathematics, and I have enjoyed it a lot. Hope that you have you might have felt the same. If you still have any question, then you can put and write in the comment box. So I have left example 6.9 it for you because it has the same mathematical expression as I've discussed in case of the mutual inductance. So I hope that you can attempt this example 6.9, and in the next video I will go for the self inductance. Thank you very much.